Hello students, welcome to my channel Hans Commerce Tutorial for the lectures on commerce, accounts, finance and management. My suggestion to you, before watching the video, please go to the description below my video. You'll find a link there. Take a printout of the problems given in the link and keep it ready before watching the video so that you can be able to understand the problem, the solution and the explanation to get the maximum benefit from the lectures. Thank you. Come on, now we'll start problem number 5. See the problem carefully. Chaitanya Industries Private Limited was incorporated on 1st February 1987. It took over the proprietary business of Chaitanya with effect from 1/1/1987. Actually, it was a sole trading concern. This sole trading concern was taken over or purchased by the company, Chaitanya Industries Private Limited. Actually, the business was taken over on 1st January 87, but the company was incorporated on 1st February 1987. That means exactly after 1 month. The balance sheet of Chaitanya as of 31st December 1986 is as follows. तो sole trading concern Chaitanya, उसका बैलेंस शीट दे दिया है. लायबिलिटी साइड कैपिटल 4,31,500, ट्रेड क्रेडिटर्स 17,000, लोन 11,000, सन्ड्री डेटर, बिल्डिंग मशीनरी लॉस. This is the balance sheet of the sole trading concern Chaitanya, and this balance sheet is taken over. The business is taken over by Chaitanya Industries Private Limited. It was agreed to pay 4,50,000 in equity shares to Chaitanya. This is the purchase consideration. The purchase consideration payable by the company to the sole trader. In a 4,50,000 rupees price में ये कंपनी जो है वो चैतन्य के बिजनेस को खरीद लिए. Now the company has to pay 4,50,000 in equity shares. The company decided to close its first accounts on 31st December 1987. The business was taken over on 1st January 1987. Accounts are closed on 31st December. That means 1 month is pre-incorporation, 11 months are post-incorporation. Now, the following are the further details furnished to you. Sales, 3 lakh rupees are the sales for the whole year. Then purchases, 1,40,000, salaries and wages, general expense, freight, interest paid, stock in trade, additions to building, means further building purchased. Depreciation may be provided at 10% on assets, including additions. So 2 assets are there, building and machinery. On both these assets, 10% depreciation should be provided, including on additions. The company requests you to prepare journal entries for the takeover. So in this problem, we have to pass the journal entries in the books of the company for taking over the business of Chaitanya. Then profit and loss account showing separately pre-incorporation and post-incorporation profit for the year ended 31st December 1987. So first, we have to pass the journal entries to be recorded in the company's books for acquiring the business. Now, see carefully. Journal entries in the books of Chaitanya Industries Private Limited. The first entry will be PC due. The business purchase account debtor to Chaitanya, vendor. The vendor is Chaitanya. तो एंट्री जो पास करती है कंपनी, business purchase account debtor 4,50,000 to Chaitanya account 4,50,000. Being the business purchased and PC due. Being the business purchased and PC due. Second entry. We debit all assets taken over and credit all liabilities taken over. कंपनी क्या कर रही है? चैतन्य के बिजनेस को टेक ओवर कर रही है. बिजनेस को टेक ओवर करने का मतलब उसके एसेट्स और लायबिलिटीज को ले रही. तो डेबिट ऑल एसेट्स टेकन ओवर एंड क्रेडिट ऑल लायबिलिटीज टेकन ओवर. तो पहले तो अगर अमाउंट ज्यादा पे करे तो गुडविल. एग्जांपल, चैतन्य का बिजनेस सपोज 3 लाख रुपीस का है, 3 लाख रुपीस का है, लेकिन कंपनी उसको 4,50,000 रुपीस पे करके खरीद रही, तो एक्सेस अमाउंट जो पे कर रही है वो गुडविल होता, क्योंकि बिजनेस है 3 लाख रुपीस का, मगर पेमेंट जो कर रहे हैं 4,50,000, तो 1,50,000 जो एक्सेस पे करेंगे उसको गुडविल कहते हैं. कभी क्या होता है, वैल्यू ऑफ द बिजनेस इज मोर बट द अमाउंट पेड इज लेस, उसको कैपिटल रिजर्व कहते हैं. एग्जांपल, बिजनेस का वर्थ 4,50,000 है, लेकिन परचेस कंसिडरेशन 3 लाख रुपीस दे रहे, 3 लाख रुपये में बिजनेस खरीद ले रहे, जबकि बिजनेस का वैल्यू 4,50,000 है, तो इसको कैपिटल रिजर्व कहते हैं. तो बिजनेस टेक ओवर के टाइम पे या तो गुडविल हो सकता
या कैपिटल रिजर्व हो सकता। तो सेकेंड एंट्री पास करते हैं। फर्स्ट विल राइट ऑन गुडविल अकाउंट डेटा बैलेंसिंग फिगर। ये गुडविल आएगा या नहीं आएगा अभी पता नहीं है, ये एंट्री पास करने के बाद हमको पता चलेगा कि वेदर वी हैव गुडविल और नॉट। तो सिंपली फर्स्ट यू शुड राइट ऑन गुडविल अकाउंट डेटा बैलेंसिंग फिगर, डोंट टेक दिस अमाउंट। सन्ड्री डेटास, अब चैतन्य की जो बैलेंस शीट दिया, जो सोल ट्रेडर की जो बैलेंस शीट है उसमें सन्ड्री डेटा 25,700 है, बिल्डिंग 1,10,000, मशीनरी 3 लाख, ओनली 3 एसेट्स आते, वो तीनों एसेट्स को ले लिए डेबिट साइड। लायबिलिटीज में 2 लायबिलिटीज है, ट्रेड क्रेडिटर्स एंड लोन। ये दोनों लायबिलिटीज को टेक ओवर कर लिए, टू ट्रेड क्रेडिटर्स टू लोन एंड बिजनेस परचेस को क्रेडिट करेंगे। पहली एंट्री में बिजनेस परचेस को डेबिट करे थे, बिजनेस परचेस अकाउंट डेटा टू चैतन्य अकाउंट। नाउ सेकंड एंट्री बिजनेस परचेस शुड बी क्रेडिटेड 4,50,000। नाउ यू हैव टू सी वेदर डेबिट साइड इज मोर और क्रेडिट साइड। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो गुडविल, अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा तो कैपिटल रिजर्व। तो दो में से कोई एक चीज आती, या गुडविल आता है या कैपिटल रिजर्व आता। इन आर प्रॉब्लम ये तीनों का टोटल करेंगे 17,000 प्लस 11,000 प्लस 4,50,000। ये टोटल करके अगर माइनस कर देंगे तीनों एसेट्स को तो बैलेंसिंग फिगर आ गया 42,300। दैट मींस क्रेडिट साइड इज मोर, डेबिट साइड इज लेस। तो वी आर गेटिंग लेस अमाउंट ऑन द डेबिट साइड, तो बैलेंसिंग फिगर गुडविल 42,300 एंड 42,300 रुपीस मोर पे कर रही कंपनी, कंपनी ज्यादा पे कर रही चैतन्य। क्यों ज्यादा पे कर रही? गुडविल है बिजनेस का। इसका नरेशन रहेगा बीइंग द एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर, बीइंग द एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर। नाउ पेमेंट ऑफ पीसी, अब पीसी पे कर देना है चैतन्य को। चैतन्य अकाउंट डेटा टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर कैश पे करते तो टू कैश आता था, टू बैंक आता था, लेकिन यहां पर कैश या बैंक नहीं पे कर रहे, शेयर्स दे रही। द कंपनी इज इश्यूइंग शेयर्स टू चैतन्य, तो चैतन्य अकाउंट डेटा टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब देखिए फर्स्ट एंट्री में चैतन्य को क्रेडिट करे थे और लास्ट एंट्री में चैतन्य को डेबिट कर दिया। चैतन्य का अकाउंट क्लोज, बीइंग द पीसी पेड, परचेस कंसिडरेशन पेड। तो दीज आर द 3 एंट्रीज ऑन एक्वायरिंग द बिजनेस। बिजनेस खरीदने के लिए ये 3 एंट्री पास करें। Business purchase account data to Chaitanya account, being the business purchased and PC due. Debit all assets taken over, credit all liabilities taken over. Just make a provision that it may arise goodwill or capital reserve. दो में से कोई एक आ सकता। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है और डेबिट का कम है तो गुडविल आएगा। अगर डेबिट का टोटल ज्यादा आ रहा, क्रेडिट का टोटल कम आ रहा, तो यहां पर टू कैपिटल रिजर्व है। लेकिन हमारे प्रॉब्लम में क्रेडिट साइड इज मोर, डेबिट साइड इज लेस। तो ये तीनों को ऐड करके ये 3 अमाउंट्स माइनस कर देंगे। 17,000 प्लस 11,000 प्लस 4,50,000, जो भी टोटल आएगा उसमें से माइनस 25,700 माइनस 1,10,000 माइनस 3 लाख। तो बैलेंसिंग फिगर यू आर गेटिंग 42,300। दिस इज द बैलेंसिंग फिगर गुडविल, बीइंग द बिजनेस बीइंग द एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर। नाउ पीसी पेड, चैतन्य अकाउंट डेटा टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बीइंग द पीसी पेड 4,50,000 हो गया। This is the first question completed, journal entries on acquiring the business. Secondly, we have to find out the gross profit. क्योंकि step 1 यही है कि when we want to find out the pre-incorporation profit and post-incorporation profit, first we need gross profit for the whole year. एक साल का gross profit कैसे मालूम करेंगे? Gross profit is the difference between sales and cost of sales. Sales और cost of sales का जो difference रहता, या simply sales minus cost of sales is equal to gross profit. सेल्स दे दिया 3 लाख, कॉस्ट ऑफ सेल्स में परचेजेस आर 1,40,000, क्लोजिंग स्टॉक इज 22,000 माइनस कर दिया। एक्चुअली कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, बट वी डोंट हैव ओपनिंग स्टॉक, डायरेक्टली वी आर टेकिंग परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक 22,000। तो फ्राइट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, तो डायरेक्ट एक्सपेंस को ऐड कर देंगे। फ्राइट 4,700, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया 1,22,700, 1,22,700। अब सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, ए माइनस बी, तो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, ए माइनस बी, 1,77,300। दिस 1,77,300 इज कॉल्ड द ग्रॉस प्रॉफिट। ये कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मूला याद रखिए, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक।
ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, ओपनिंग स्टॉक तो नहीं है हमारे पास, छोड़ दो उसको, परचेजेस लेंगे। परचेजेस में फ्राइट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, द फ्राइट कैरेज इनवर्ड इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, तो यहां पर फ्राइट दिया है तो फ्राइट को ऐड कर देंगे और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देंगे, तो विल गेट कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट्स। Chaitanya Industries Private Limited profit and loss statement for the year ending. Gross profit. Before making this profit and loss statement, first we'll find out the ratios. Time ratio. Date of acquiring the business is 1st January 87. Date of incorporation 1st February 1987. एक महीने के बाद, तो प्री इंकॉर्पोरेशन पीरियड 1 month, पोस्ट इंकॉर्पोरेशन पीरियड 11 months. तो टाइम रेशियो इज 1:11. तो 1/12, 11/12. That is the time ratio. Now, since the information about sales in pre and post incorporation period are not given, so we cannot calculate sales ratio. Hence, the gross profit and all expense are apportioned in time ratio. Actually, gross profit को apportion करने के लिए हमको sales ratio चाहिए. अब हमारे प्रॉब्लम में कितना सेल्स प्री में है, कितना पोस्ट में है, इंफॉर्मेशन नहीं दिया. what is given is 3 लाख रुपीज ऑफ द टोटल सेल्स. पूरे एक साल के सेल्स 3 लाख रुपए है. प्री में कितना है, पोस्ट में कितना है, नहीं मालूम, नॉट गिवन. So we divide the gross profit and all expenses in the ratio of time, 1:11. Now, gross profit. The total gross profit we got 1,77,300. अब इसको ये टाइम रेशियो में डिवाइड करेंगे 1/12. तो 1,77,300 into 1 divided by 12, 1/12, 14,775. 1,77,300 into 11/12, 1,62,525. अब एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, these are nothing but salaries. तो प्रॉब्लम में सैलरीज दे दिया, 40,000 रुपीज ऑफ द सैलरीज पेड ड्यूरिंग द ईयर. अब ये 40,000 को डिवाइड करेंगे, 40,000 into 1/12, 40,000 into 11/12, you'll get this amount. उसी तरह फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट इज 8,000. अगेन वी डिवाइडेड इन द रेशियो 1:11, 1/12, 8,000 into 1/12, 8,000 into 11/12. Depreciation. Problem is that depreciation should be calculated 10% on assets, fixed assets. There are two fixed assets, building and machinery. अब building का वैल्यू जो था चैतन्य के पास से जो आ रहा था 1,10,000, 1,10,000 रुपीज की बिल्डिंग थी जो चैतन्य के पास से खरीदे. Apart from that, during the year additions were made to building for 38,000. In the problem it is given, नई बिल्डिंग खरीदे 38,000. तो पहले 1,10,000 और 38,000, तो 1,48,000. तो depreciation should be provided on 1,48,000 into 10%, 14,800. मशीनरी, जो बिजनेस एक्वायर करे उसमें मशीन का वैल्यू 3 लाख. अब ये 3 लाख रुपीस के ऊपर 10%, 30,000. तो टोटल डेप्रिसिएशन 44,800. टोटल डेप्रिसिएशन 44,800. अब इसको डिवाइड करेंगे 1:11, 44,800 into 1/12, then 44,800 into 11/12. Last other expenses, 32,000 rupees are the other expenses. उसको भी 1/12, 11/12. That's it. This is the complete solution of problem number 5. Come on students, now we'll start problem number 6. See the 6th problem. A firm which was carrying on business from 1st Jan 1995 gets itself incorporated as a company on 1st May 1995. तो कंपनी स्टार्ट कर दी बिजनेस अपना 1st जनवरी से, लेकिन उसको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिला 1st मई को. तो कितने महीने के बाद, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने. ये 4 महीने को प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में. The first accounts are drawn up to 30th September 95. Actually accounts जो closing date है वो 30th September है, 31st December या March नहीं है, 30th September. तो how many months are falling after incorporation? May, June, July, August, September, 5 months. तो ये पूरे प्रॉब्लम में 4 months are pre-incorporation period and 5 months are post-incorporation period. तो पूरे जो अकाउंट्स बनाएंगे 4 + 5, 9 months के अकाउंट्स हैं. 9 months because we are closing the accounts on 30th September. Started the business on 1st January. The gross profit for the period is 56,000. The general expenses are 14,220. Directors' fee 12,000 per annum. Formation expenses 1,500.
Rent up to 30th June is 1200 per annum, after which it is increased to rupees 3000 per annum. तो रेंट जो है 1200 रुपीज पर एनम, तो पर मंथ कितना हो गया? 1200 डिवाइड बाय 12, 100 रुपीज पर मंथ हो गया. कब तक रेंट है ये? 30th जून तक. और 30th जून के बाद इंक्रीमेंट हो गया, रेंट 3000 रुपीज पर एनम हो गया. तो 3000 पर एनम का मतलब 3000 डिवाइड बाय 12 विल गेट 250. तो 30th जून तक 100 रुपीज पर मंथ रेंट है, और 30th जून के बाद रेंट जो है 250 रुपीज पर मंथ हो गया. Salary of manager who upon the incorporation of the company was made a director is rupees 6000 per annum. एक मैनेजर था, उसको सैलरी 6000 रुपीज पर एनम सैलरी पे कर रहे थे. 6000 पर एनम, तो उसको पर मंथ मालूम कर लेंगे. 6000 डिवाइड बाय 12 अगर कर लेंगे तो पर मंथ आ जाएगा. तो मंथली सैलरी उसका 500 रुपीज हो जाएगा. 500 रुपीज पर मंथ. तो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड कितने मंथ्स है? 4 मंथ्स. तो 500 into 4, 2000 रुपीज इज द सैलरी ऑफ मैनेजर. मैनेजर कब था उन्हें? इनकॉर्पोरेशन से पहले. तो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में सैलरी ऑफ मैनेजर लेंगे हम 2000 रुपीज. एंड इनकॉर्पोरेशन के बाद वो मैनेजर डायरेक्टर बन गया, तो वो डायरेक्टर्स की फी, डायरेक्टर फी अलग लेंगे. Then his remuneration thereafter is included in the above figure to fees to directors. Give profit and loss account showing pre and post incorporation profit. The net sales are 8,20,000. The monthly average of which for the first 4 months of 1995 is 1/2 of that of the remaining period. The company earned a uniform profit. Interest and tax may be ignored. अब ये प्रॉब्लम में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट सेल्स रेशियो के बारे में. टोटल सेल्स दे दिया है, लेकिन हमको कितना प्री है कितना पोस्ट नहीं दिया. खाली एक क्लू ये दे दिया है, द मंथली एवरेज सेल्स ऑफ द फर्स्ट 4 months आर हाफ देन द मंथली एवरेज सेल ऑफ द नेक्स्ट 5 months. टोटली 9 months है. पहले 4 महीने प्री, बाद के 5 महीने पोस्ट. तो पहले 4 महीने जो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड है उसके मंथली एवरेज सेल्स हाफ है. किसका हाफ है? द मंथली एवरेज सेल्स ऑफ द नेक्स्ट 5 months. तो ये बेसिस के ऊपर हमको सेल्स रेशियो कैलकुलेट करना है. ठीक. फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द फॉर्मेट. फर्स्ट यू सी द वर्किंग नोट्स. टाइम रेशियो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड फ्रॉम 1st January 95 to 1st May 95, 4 months. पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड 1st May 95 to 30th September 95, 5 months. तो टाइम रेशियो आ गया 4:5. सेल्स रेशियो, द मंथली एवरेज सेल्स ऑफ द फर्स्ट 4 months इज 1/2 ऑफ द रिमेनिंग 5 months. यही वर्डिंग प्रॉब्लम में दिया है. पहले 4 महीने का मंथली एवरेज सेल आधा है. किसका आधा है? मंथली सेल ऑफ द नेक्स्ट 5 months. एवरेज मंथली सेल ऑफ द नेक्स्ट 5 months. यहां सपोज करेंगे, लेट द मंथली एवरेज सेल ऑफ द फर्स्ट 4 months इज 100. सपोज करेंगे पहले 4 महीने का मंथली एवरेज सेल 100 रुपीज है, तो फिर नेक्स्ट 5 months का इसका डबल हो जाएगा. 100 रुपीज का डबल हो जाएगा 200 रुपीज. Therefore, monthly average sale of next 5 months will be 200. तो सपोज कर रहे हैं, we are supposing that first 4 months का मंथली एवरेज सेल अगर 100 रुपये हो गया, तो बाकी के 5 महीने का मंथली एवरेज सेल 200 रुपये होगा. डबल हो जाएगा. या इन अदर वर्ड्स, मंथली एवरेज सेल ऑफ सेकेंड 5 months is 200. सेकेंड 5 months is 200. तो 200 का हाफ कितना हो गया? 100 हो गया. तो पहले 4 महीने का मंथली एवरेज सेल 100 रुपये. दिस इज द कंडीशन गिवन इन द प्रॉब्लम. तो ये बेसिस के ऊपर 100 रुपीज मंथली एवरेज सेल ऑफ फर्स्ट 4 months एंड 200 रुपीज और मंथली एवरेज सेल ऑफ नेक्स्ट 5 months. टोटल सेल्स ऑफ द फर्स्ट 4 months. तो एक महीने का एवरेज सेल 100 रुपये है. तो कितने मंथ्स है यहाँ? 4 months. तो 400 रुपीज इज द टोटल सेल्स ऑफ द फर्स्ट 4 months. टोटल सेल्स ऑफ द नेक्स्ट 5 months, 5 into 200. 5 months का मंथली एवरेज सेल 200 रुपये है. 5 महीने का 5 into 200, 1000. तो टोटल सेल्स ऑफ फर्स्ट 4 months 400. टोटल सेल्स ऑफ नेक्स्ट 5 months 1000. तो 4:10, 2:5. 2:5 is the sales ratio, right? Now salary of manager. एक मैनेजर था, उसको सैलरी पे कर रहे थे 6000 रुपीज पर एनम बिफोर इनकॉर्पोरेशन. तो 6000 पर एनम का मतलब मंथली कितना हो गया? पर मंथ कितना हो गया? 6000 by 12, 5 मंथली 500. लेकिन ये मैनेजर कब तक रहेगा? इनकॉर्पोरेशन तक मैनेजर रहेगा. इनकॉर्पोरेशन के बाद उन्हें डायरेक्टर बन गया. तो सैलरी ऑफ मैनेजर पहले 4 महीने के लिए पे करेंगे.
तो सैलरी ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड 500 into 4 2000, ये वर्किंग नोट। ना मंथली रेंट, प्रॉब्लम में दिया है कि मंथली रेंट इज 1200 पर एनम अप टू 30th जून। 30th जून तक 1200 पर एनम है, पर एनम नहीं चाहिए हमको, पर मंथ चाहिए। तो डिवाइड कर देंगे, मंथली रेंट अप टू 30th जून 1200 डिवाइड बाय 12 इज 100 रुपीज। और 30th जून के बाद रेंट इंक्रीज हो गया, अब 3000 पर एनम हो गया, तो 3000 डिवाइड बाय 12 250। मंथली रेंट अगर देखेंगे तो पहले 4 महीने तक मंथली रेंट, पहले 4 महीने तक नहीं, अप टू 30th जून, अप टू 30th जून, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 6 महीने तक, 6 मंथ्स तक रेंट उसका 100 रुपीज पर मंथ, और वो 30th जून के बाद रेंट 250 रुपीज पर मंथ हो। अब ये बेसिस के ऊपर को प्री इनकॉर्पोरेशन रेंट, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन रेंट मार्क। तो प्री इनकॉर्पोरेशन मंथ्स कौन से, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये पूरे 4 महीने में 100 रुपीज पर मंथ। पर मंथ रेंट कितना है, 100 रुपीज, तो 400 रुपीज। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 5 महीने। अब मई और जून ये 2 महीने का रेंट 100 रुपीज पर मंथ है, क्योंकि 30th जून तक, 30th जून तक रेंट 100 रुपीज है, तो मई और जून को 100 रुपीज। जुलाई 1st से रेंट इंक्रीज हो गया, अब 250 रुपीज पर मंथ हो गया, 250 250 250, तो टोटल रेंट इज 950 रुपीज रेंट। अब अदर एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस प्रॉब्लम में दे दिया 14,220। अब ये 14,220 को टाइम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। टाइम रेशियो यहां पर है 4:5, 4/9, 5/9, तो 14,220 इंटू 4/9, 14,220 इंटू 5/9, ये हो गया। डायरेक्टर्स फी प्रॉब्लम में दे दिया, डायरेक्टर्स फी इज 12,000 रुपीज पर एनम, 1 साल के लिए। मगर डायरेक्टर को हमको 1 साल तो सैलरी नहीं पे कर रहे, हमारा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड 5 महीने का है। द पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड 5 मंथ्स, तो 5 मंथ्स की सैलरी कितनी होंगी, 12,000 इंटू 5/12, 5,000, 12,000 रुपीज पर एनम बोल रहा हूं, 1 साल के, तो महीने को 1,000 रुपए पड़ गए, 1,000 रुपीज पर मंथ, 5 मंथ्स के 5,000 पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। Then formation expenses 1,500 rupees. Formation expenses are preliminary expenses, exclusively taken in post. Then rent. Rent के बारे में यहाँ कैलकुलेट कर लिया, प्री में 400, पोस्ट में 950. Total pre 6,720, total post 15,350. Other expenses. Now come to the profit and loss statement for the period ending. Gross profit problem में दे दिया 56,000. अब ये 56,000 को सेल्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सेल्स रेशियो यहाँ पे, सेल्स रेशियो 2:5, तो 2/7 5/7, 56,000 इंटू 2/7, 56,000 इंटू 5/7, ये ग्रॉस प्रॉफिट। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस आर नथिंग बट सैलरीज, सैलरी ऑफ मैनेजर। तो कितना है सैलरी ऑफ मैनेजर, 2,000, प्री इनकॉर्पोरेशन 2,000, देयर आर नो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन सैलरी ऑफ मैनेजर। Other expenses 6,720 we have calculated here, 15,350 we have calculated the total. Then A minus B, 16,000 minus 8,720, 7,280 pre-incorporation profit. 40,000 minus 15,350, 24,650 is the post-incorporation profit. Total net profit. That's it. So this is the complete explanation of problem number 5. Problem number 6, sorry. Come on, now we'll start the last and final problem on this profit prior to incorporation, that is 7th problem. And this 7th problem is exactly similar to the 6th problem. Just know what we have done. Only small changes are there, figures are different, but the content is completely same. See carefully. X Limited was incorporated on 1st May 1989 to acquire a business as on 1st January 89. तो actually business take over कर रहा है 1st January को, लेकिन incorporation हो रहा है 1st May. तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 महीने प्री इनकॉर्पोरेशन। द फर्स्ट अकाउंट्स वर क्लोज्ड ऑन 30th सितंबर, सेम एग्जैक्टली सेम अकाउंट्स क्लोज कर रहे हैं 30th सितंबर को। इनकॉर्पोरेशन डेट 1st मई, तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 5 मंथ्स, 4 मंथ्स प्री इनकॉर्पोरेशन, 5 मंथ्स पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। तो डाटा गिवन, द ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द पीरियड 42,000, डिटेल्स ऑफ अदर एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस 7,200, डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन 12,000, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 2,000. Rent up to 30th June was 6,000 per annum.
after which it was increased by 40%. तो 6,000 rupees per annum, तो 6,000 divided by 12, you'll get 500 rupees. तो मंथली रेंट 500 रुपीज था. कब तक था ये? 30 जून तक. और 30 जून के बाद रेंट में इंक्रीमेंट हो गया 40%. तो 500 रुपीज का 40% 200 रुपीज होता है. तो 200 रुपीज इंक्रीज कर दो. 500 प्लस 200 700 रुपीज. इन अदर वर्ड्स 30 जून तक रेंट जो है 500 रुपीज पर मंथ, और 30 जून के बाद रेंट 700 रुपीज पर मंथ. दैट्स इट. Then salary of the manager who on formation of the company had become a whole-time director and whose remuneration has been given above was agreed before incorporation to be remunerated 5,100 per annum. एक मैनेजर था जो इनकॉर्पोरेशन से पहले मैनेजर था, उसको 5,100 रुपीज पर एनम सैलरी पे कर रहे थे. तो 5,100 रुपीज पर एनम, तो उसको पर मंथ कितना हो जाएगा? 5,100 डिवाइड बाय 12, 425 रुपीज. तो पर मंथ 425 रुपीज. So how many months are there pre-incorporation? 4 months. So 4 into 425. Here you can see the calculations. Salary of manager, pre-incorporation salary of manager per month, 5,100 divided by 12, 425. So salary of manager before incorporation, 4 months into 425, 1,700 rupees is the salary of manager before incorporation. और incorporation के बाद वो manager जाकर director बन गया, और उसको director का remuneration इसमें मिला हुआ है. Director's remuneration 12,000 rupees. The company earned a uniform gross profit. The sales up to 30th September 1989 were 98,000. पूरे 9 months के sales 98,000. The monthly average of the sales of the first 4 months of the year was 1/2 of the remaining period. पहले 4 महीने का जो रेंट है, जो सेल्स है, the sales of the first 4 months are half than the monthly average of the next 5 months. तो पहले 4 महीने का जो मंथली सेल्स है वो आधा है. किसका आधा है? नेक्स्ट 5 मंथ्स के मंथली एवरेज का. तो सपोज करना कि पहले 4 महीने का मंथली एवरेज 100 रुपये है, तो फिर बाकी के 5 महीने का 200 रुपये हो जाएगा, डबल हो जाएगा. और डबल का हाफ कर दे तो 100 रुपीज हो जाएगा. 200 का हाफ 100, और 100 का डबल 200. राइट? तो एग्जैक्टली सेम. द मंथली एवरेज सेल्स ऑफ द फर्स्ट 4 मंथ्स आर 1/2 of the remaining 5 months. Let the monthly average sales of the first 4 months 100. Therefore, monthly average sales of the next 5 months will be 200. पहले 4 महीने का मंथली एवरेज 100 रुपये है, तो बाकी के 5 महीने का मंथली एवरेज 200 रुपये हो जाएगा. तो टोटल सेल्स ऑफ द फर्स्ट 4 मंथ्स 4 into 100 400. टोटल सेल्स ऑफ द नेक्स्ट 5 मंथ्स 5 into 200 1000. तो सेल्स रेशियो आ गया 4:10 और 2:5. सेम, एग्जैक्टली सेम व्हाट वी हैव डन इन द 6th प्रॉब्लम. टाइम रेशियो 1189 to 1589, 4 months, 5 months, 4:5. This is also same, right? Then salary of manager, just now we have discussed. Now general expenses 7,200 rupees is given, and that will be apportioned in time ratio 4:5. General expenses should be apportioned in the ratio 4:5, time ratio. So 3,200, 7,200 into 4 by 9, 7,200 into 5 by 9, you'll get. Director's remuneration will be exclusively charged to post incorporation, 12,000. Preliminary expenses again exclusively charged to post incorporation. Then rent के लिए अभी यहाँ पर मालूम करें, monthly rent up to 30th June is 6,000 per annum. तो per month कितना हो जाएगा? 6,000 divided by 12, 500. Monthly rent 500 है. कब तक है ये? 30th June तक. After 30th June rent increased by 40%. That is 500 plus 40%, 700. तो 30 जून तक 500 रुपए, और 30 जून के बाद 700 रुपए. तो प्री इनकॉर्पोरेशन रेंट जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल पूरे 500 रुपए, 500 रुपीज पर मंथ, तो 2000. पोस्ट इनकॉर्पोरेशन मई और जून में भी 500 है, लेकिन जुलाई से रेंट 700 हो गया, क्योंकि 30 जून के बाद रेंट बढ़ रहा. 30 जून तक रेंट 500 रुपीज है, जुलाई 700, अगस्त 700, सितंबर 700, टोटल रेंट 3,100. सो यू कैन सी 2,000 and 3,100. Total pre-incorporation 5,200, 21,100. Now we'll start the profit and loss statement for the period. Gross profit problem में दे दिया 42,000, and this 42,000 will be apportioned in sales ratio. Sales ratio 2:5. तो 42,000 into 2 by 7, 12,000. 42,000 into 5 by 7, 30,000. Gross profit over. Now employee benefit expenses, salary of manager. अभी मालूम करें salary of manager 1,700 है pre-incorporation. अदर एक्सपेंसेस का अभी टोटल मालूम कर लिया. द टोटल ऑफ द एक्सपेंस 6,900, 21,100, 28,000.
the profit A minus B. 5,100 is the pre-incorporation profit and post-incorporation profit 8,900. Total profit is 14,000. So this is the end of all the problems on pre-incorporation profits. So first of all, watch the theory of this concept profit prior to incorporation till the end. You can get the command, what is the meaning and what are the methods of calculating pre-incorporation profit. Then after solving these problems, you will get a good command on how to calculate the profit prior to incorporation. That's all. In the next video, next session, we will start valuation of goodwill.